بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر آرمی چیف کو بڑا اعزاز، جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلہ، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات بھی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ افواج پاکستان کے افسران، جوانوں، شہداء، غازیوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران خدمات پر اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر رب کائنات کے شکر گزار، اعزاز قوم افواج پاکستان سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام کرنے کا اعلان۔ صدر وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد پر اظہار تشکر۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قوم سے بھی اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل کسی بھی ملک کی افواج کا سب سے بڑا عہدہ۔ جنرل عاصم منیر ایوب خان کے بعد فیلڈ مارشل بننے والی پاکستان کی دوسری شخصیت بن گئے۔ برطانیہ کے 141، روس کے 64 جرنیل فیلڈ مارشل بنے۔ جدید ترکیہ کے بانی کمال اتا ترک بھی فیلڈ مارشل رہے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے جنرل عاصم منیر کے لیے مبارکبادوں کے پیغامات۔ وزیر اعظم کی پوری قوم کو مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار کامیابی پر مبارکباد۔ 6 اور 7 مئی کی رات بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال اور بلا جواز جنگ مسلط کی۔ سول آبادی میں خواتین اور بچوں سمیت معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کو پامال کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ وفاقی کابینہ کا جرأت اور بہادری کے بہترین مظاہرے پر عسکری قیادت کو خراج تحسین۔ چین نے پاک فضائیہ کو مکمل تکنیکی معاونت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان میں چینی سفیر کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات، دفاعی تعاون اور خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اشتراک کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا مشن۔ بیجنگ میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم کی چینی قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر خارجہ کی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لیو جیان چاؤ کے ساتھ بھی بیٹھک۔ خطے کی صورتحال پر مشاورت۔ فریقین نے مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں امن کا ضامن قرار دے دیا۔ ترجمان پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور چین کا تعاون بے مثال قرار دے دیا۔ کوئی ملک دوسرے پر بغیر ثبوت چڑھائی نہیں کر سکتا۔ کسی بڑے ملک کی دوسرے پر اجارہ داری قبول نہیں۔ ترجمان پاک فوج نے قوم کے عزم کو سب سے بڑی طاقت قرار دے دیا۔ بھارتی جھوٹا پروپیگنڈا اور جارحیت سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت 8 رکنی کمیٹی کو دفتر خارجہ میں بریفنگ۔ ارکان کی پاک بھارت تعلقات کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ کمیٹی کو مزید بریفنگز بھی دی جائیں گی۔ وفد امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک بھی جائے گا۔ مصدق ملک کی پروگرام آج شاذب۔ سینیٹر شہری رحمان نے کمیٹی کو 2 ٹیموں میں تقسیم کرنے کی تصدیق کر دی۔ اتحادیوں کے ساتھ چھوڑ جانے پر مودی۔ آپریشن سندور میں شکست خوردہ بھارت سفارتی محاذ پر بھی ناکام۔ دنیا بھر میں ساکھ بحال کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا وفد اختلافات کا شکار۔ راہل گاندھی نے وفد کے لیے حکومتی نامزدگیاں مسترد کر دیں۔ بھارت کا مقدمہ لڑنے والے مودی پر ہی تنقید کرنے لگے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق کئی رہنماؤں نے وفد کا حصہ بننے سے ہی انکار کر دیا۔ بھارت جنگ بندی میں ٹرمپ کے کردار سے مکر گیا۔ سیز فائر میں امریکی صدر کا کوئی کردار نہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی 2 طرفہ تھی۔
ट्रंप ने बीच में आने की भारत से इजाजत नहीं ली। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग। भारतीय सहाफी भी पाक फौज की तारीफें करने पर मजबूर, मोदी सरकार की नींदें उड़ गईं। हिंदुस्तान के एक और सहाफी ने राफेल तैयारे की तबाही समेत भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। मोदी सरकार की जानिब से नुकसानात की तरदीद न करना तैयारों की तबाही का सबूत करार दे दिया। मोदी सरकार हकाइक सामने आने से खौफजदा, सवाल पूछने पर आवाजों को कुचलने पर उतर आई। गुजरात समाचार न्यूज चैनल का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। न्यूज चैनल के डायरेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। बाहुबली भाई शाह हुकूमत से पाकिस्तान से जंग पर जवाबदेही का मुतालबा कर रहे थे। गुजरात समाचार टीवी दफ्तर पर इनकम टैक्स एहलकारों ने छापा मारा। उसके फौरन बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने धावा बोल दिया। जंग में शिकस्त खोरदा भारत के सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल दिलाने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने अमृतसर में सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। टेम्पल जैसे मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का तस्वर भी नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय इल्जामात को बेबुनियाद और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। सिखों ने भी गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागे जाने का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारतीय फौज के अफसर ने श्री दरबार साहब अमृतसर और गोल्डन टेम्पल पर हमले की झूठी खबर फैलाई थी। सिख रहनुमाओं का झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त छुपाने के लिए भारतीय ओछे हथकंडे भी फ्लॉप। भूखलाहट का शिकार भारतीय फौज ने सोशल मीडिया पर ब्रह्मोस मिसाइल की तबाही की तस्वीर को पाकिस्तानी मिसाइल करार दे दिया। सोशल मीडिया पर झूठी साबित हुई तो भारतीय फौज पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर हो गई। कांग्रेस रहनुमा ने भारतीय फौज को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार यूट्यूबर बीजेपी की सरगर्म कारकुन निकली। पाकिस्तान आमद से कबल बीएसएफ के एहलकार ने शनाख्त पूछी तो ज्योति मल्होत्रा ने अपना ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से बताया। बीएसएफ जवान ने जांच पड़ताल के बगैर खातून को छोड़ दिया। भारत और फितना अल हिंद की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और गठजोड़ बेनकाब। जंगी मुहाज पर शिकस्त के बाद भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की वीडियो नशर करके भारतीय चैनल दहशतगर्दों की पुश्तपनाही करने लगे। भारतीय टीवी चैनल में बीएलए की वीडियो दिखाकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को सपोर्ट करने लगा। कलदम बीएलए का अकाउंट चलाने वाला भी बिहार में आरएसएस का कारंदा निकला। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका एक्शन। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुलजिम दरवेश उर्फ सागर गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। मुलजिम का खुदकुश बमबार माहिल बलोच की जहन साजी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में सहूलतकारी का एतराफ। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्विस मुलजिम के 2 साथी पहले ही मारे जा चुके। भारत की जानिब गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग से तंग अमेरिका का एक्शन। भारत की ट्रैवल एजेंसियों के मालिकान और ओहदेदारों पर अमेरिका की जानिब से वीजा पाबंदियों का निफाज। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्विस भारतीय सहूलतकारों को अब अमरीकी वीजा नहीं मिलेगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने ऐलान कर दिया। भारतीय जारहत में शहीद और जख्मी शहरियों के लिए हुकूमत पंजाब के इमदादी पैकेज का ऐलान। शहदा के अहले खाना को 1 करोड़, शदीद जख्मियों को 20 लाख और मामूली जख्मियों को 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। नौ मई के केसेस में बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। झूठ पकड़ने वाले टेस्ट के लिए लाहौर पुलिस की टीम अडयाला जेल पहुंची। टीम में पंजाब फॉरेंसिक यूनिट के अहलकार भी शामिल। बानी पीटीआई ने ताउन से इनकार कर दिया।
बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई को कैद नाहक और मुकदमात सियासी करार दे दिए। उनकी रिहाई से मुताल्लिक मायूस नहीं। चेयरमैन पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू। 6 मई को अडियाला जेल में मुलाकात और ब्रीफिंग, दोनों की तरदीद। अलीमा खान ने कहा है कि बानी ने वाज़ेह कर दिया, पीटीआई नून लीग के साथ किसी भी सूरत बात नहीं करेगी। हुक्मरान जमात पर मुल्क की अखलाकियात तबाह करने का भी इल्जाम। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सजा के खिलाफ मुजरिम की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। रेप केस में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के मुकदमे में 10 साल कैद कम करके 1 साल कर दी गई। अहले खाना को हुक्म भी बरकरार। मुजरिम के माली और चौकीदार की सजाओं में भी कमी। 27 साला नूर मुकद्दम को 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद के पोश इलाके में कत्ल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुताल्लिक केस की समाअत। जजेस ट्रांसफर के अमल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बामायने मुशावरत ही नहीं की। लाहौर बार के वकील हामिद खान के दलाइल, जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं बल्कि रसामंदी के लिए बात की गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सैसी से टेलीफोनिक राबता। मिस्री सदर की तवज्जो भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भी मबजूल कराए। दोनों रहनुमाओं का गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पंजाब असम्बली में सिंध तास मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जी के खिलाफ करारदाद मंजूर। पानी पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा, करारदाद का मतन। भारतीय जारहियत के खिलाफ मुल्क का दिफा करने पर पाक फौज को खराज तहसीन। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ नौशहर फरोज की तहसील मोरो में कौम परस्तों ने कौमी शाहरा पर धरना दे दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम के बाद कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुश्तल अफराद ने वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का घर और ऑयल टैंकर जला डाला। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 116 रुपए 90 पैसे फीएमएम BTU इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई सिदरन के लिए 103 रुपए 95 पैसे कमी। ओगरा ने हतमी मंजूरी के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। रवा माली साल शरह नमू का हदफ हासिल न हो सका। हुकूमत ज़र्रई और खिदमात के शोबों में अहदाफ हासिल करने में नाकाम। सनती शोबे की तरक्की मुकर्ररा हदफ से ज़ाहिद रही। हुकूमत सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए इक़दामात दुनिया भर के लिए मिसाल बन गए। सैलाब मुतासरीन के लिए 8 लाख से ज़ायद घर मुकम्मल करने का कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने जैसा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बयान। लाहौर में सगे और सौतेले बाप ने मिलकर बेटी को कत्ल कर डाला। पुलिस ने सौतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मफरूर मुल्जिम की तलाश जारी है। पुलिस की यकीन दहानी। लाहौर में जहनी माजूर बच्ची से गैंग रेप के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से चंद घंटों में पकड़ा गया। कराची के कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का छापा। गैर कानूनी हिरासत में रखे गए शहरी को बाजियाब करा लिया। SHO से रिपोर्ट तलब। कराची में स्टील मिल्स मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने व्हील चेयर पर मौजूद माजूर शख्स को कुचल दिया। शहरियों और ट्रैफिक पुलिस ने डंपर के फरार की कोशिश नाकाम बना दी। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तल अफराद ने डंपर के शीशे तोड़ दिए। ज़रई यूनिवर्सिटी टंडोजाम के तलबा का हैदराबाद मीरपुर खास रोड पर धरना जारी। हॉस्टल प्रोवोस्ट की बरतरफी और सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। शाहराह पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ASF एहलकार का मुसाफिर पर मुबैना तशद्दुद। बच्चों के सामने तशद्दुद की वीडियो सामने आ गए। लाहौर में इंटरमीडिएट पार्ट 1 के सालाना इम्तिहानात का आगाज आज से होगा। 1,75,000 से ज्यादा उम्मीदवार शरीक होंगे।
पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से 1 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। वजीर तालीम ने स्कूल्स के औकात कार में कमी कर दी। स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल के औकात कार तब्दील। प्राइमरी स्कूल सुबह 7:15 से 11:40 पर खुलेंगे। सेकेंडरी स्कूल के औकात सुबह 7:15 से दोपहर 12:15 बजे तक कर दिए गए। मुल्क के मैदानी इलाकों में 4 रोज तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। आज से 24 मई तक सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर से पिघलने का अमल तेज हो गया। पानी के बहाव में इजाफे से दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। ज़ेरी इलाकों में कटाव शुरू। मकानात और ज़रई अराज़ी के साथ दरख्तों के लिए भी खतरा भी बढ़ गया। ग्लेशियर से पिघलने से दरिया से मुल्हिका रिहायशी आबादी खौफ का शिकार। बलोचिस्तान हुकूमत ने मकरान, जोब और रक्षान डिवीजन को ए एरिया में तब्दील कर दिया। तीनों डिवीजन्स में लेवी से इख्तियारात लेकर पुलिस के हवाले कर दिए गए। एलामिया जारी। सहूनी रियासत गजा में हर रोज कत्ल व गारत की नई तारीख रकम करने लगी। तबाहशुदा इमारतों के मलबे और खैमों में पनाह लेने वाले फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत मजीद 80 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइल का 100 अहदाफ को निशाना बनाने का एतराफ़। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में शहादतों की तादाद 53,573 हो गई। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, गज़ा जंग बरतानिया के इसराइल से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रही है। 11 हफ्तों से इमदाद के दाखिले पर पाबंदी भी ज़ालिमाना करार दे दी। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली ने कांस फिल्म फेस्टिवल के मौके पर शहीद खातून फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट फातिमा हसूना को खिराज अकीदत पेश किया। रूस और यूक्रेन फौरी तौर पर जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू करें। डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ते पर तवील बातचीत। रूस जंग के खात्मे के बाद अमेरिका से बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है, अमेरिकी सदर का ट्वीट। मुत्तहदा अरब अमारात से गुज़िश्ता 2 सालों में 10,000 से जायद पाकिस्तानी डिपोर्ट। पाकिस्तानी शहरियों को मुख्तलिफ जराइम पर UAE से निकाला गया। दस्तावेजात में इंकिशाफ। PSL सीजन 10 के प्लेऑफ मरहले का आगाज आज से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। फातेह टीम इवेंट के फाइनल के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर जाएगी। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर के अहम मुकाबले में लियोनेल मेसी की टीम को शिकस्त। इंटर मियामी को ऑरलैंडो सिटी ने 3-0 से हरा दिया। विरासती जायदाद की तकसीम के मौजू पर बनने वाले ड्रामे में लोक दास्तान हीर रांझा का तड़का। लाहौर में अस्सलामु अलैकुम आओ जी के नाम से स्टेज ड्रामा पेश। मुसलमानों की हुक्मरानी खिलाफत उस्मानिया से लेकर मशरिक़ वुस्ता की बंदरबांट और दूसरी जंग अजीम समेत तकसीम हिंद से मुताल्लिक 100 साल। लाहौर में ड्रामा लॉरेंस इन लाहौर ने अहम तारीख का अहाता कर लिया। कश्मीर पर भारतीय कब्जे और जिद्दोजहद आज़ादी के लिए कुर्बानियां भी उजागर।